So now standard C preprocessor. C compilation is actually done with two functional parts, preprocessor and translator. So what is preprocessor? We will discuss today. Even from the first program, we have started using this preprocessor, right? Preprocessor is previously then processing. Preprocessor is previously then processing. Processing means compilation. Processing means compilation. Only compiler is not responsible for doing things before program's execution. One more entity is there, that is preprocessor. So what is role for preprocessor? Obviously, if compiler is coming after preprocessor, that means preprocessor is preparing something ready for compiler. Something ready-made will be given to compiler for compilation, right? Or you can say some line of code will be changed accordingly so that compiler will see only that particular thing, right? That will be done by preprocessor. If there are few comments, if there are few line splicing based things, or if there are other things available and they are not needed for compiler to compile, then who will decide? This is not for compiler. Preprocessor will decide. So obviously various tasks are done before compilation for a program, and those things are done by preprocessor. One task we have already seen, that is hash include stdio.h. At the time when I was discussing first C program, that I have told you that hash is a preprocessor directive. Hash is a preprocessor directive. There are various other preprocessor directives available. Now we will discuss all of them one by one, right? So directive means command. So within this diagram, you can see it can behave like a compiler as a whole, but inside this diagram, GCC based compiler, we have two parts. One is C preprocessor and one is C compiler, right? In general, we can say it is a compiler or translator or anything you can say, but it is actually made up of these two things. So preprocessor works before compiler. So your program is given to preprocessor, and preprocessor will expand this program, and that expanded code is given to C compiler. Then compiler compiles it. Okay. So preprocessor has various tasks. Few tasks are written over here also. Expand some kind of characters that are available inside entire program, but that is meant for preprocessor, are being expanded by preprocessor, so that compiler will see expanded code. तो जैसे आप लिखते हैं ना, प्रोग्राम आपका है 5 लाइन का हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन लिखा, मेन में लिखा आपने printf डबल कोट्स हेलो सेमीकोलन लगाकर बंद कर दिया, राइट? You have written only 2 or 3 line of code to print hello world on screen, but this 2 or 3 line of code is not given to compiler. Actually, it is expanded to at least 10 line code. At least it is being doubled here itself. If it is 15 line code, maybe it will be converted to 20 or 25 line code. So that expansion is being done by preprocessor. So as many number of user defined system defined functions and macros you will use, preprocessor will expand those definitions. तो जितने भी उसमें वाइट स्पेसेस और कमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में, उनको आइडेंटिफाई करता है प्रीप्रोसेसर, ताकि कमेंट को कंपाइलर कंपाइल ना करे. और बहुत सारे प्रीप्रोसेसर के डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे फाइल इंक्लूजन, मैक्रो एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन. ये 3 मेजर पार्ट्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं डायरेक्टिव्स, राइट? वी विल डिस्कस दीज 3 फर्स्ट. सो प्रीप्रोसेसर हमारा क्या है? एक तरह से प्रीप्रोसेसर एक स्मार्ट एडिटर है. एडिटर क्या होता है? जैसे नोटपैड हमारा एडिटर होता है कि हम उसमें कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसको देखते हैं, एडिट कर लेते हैं, राइट? तो ये भी एक स्मार्ट एडिटर की तरह से वर्क करता है, और हमारा सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करके देता है. प्री प्रोसेस करके यानी उसके रॉ फॉर्म है, सोर्स कोड का रॉ फॉर्म है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके और बेटर वे में कंपाइलर को देता है, इससे कंपाइलर को और ज्यादा टाइम ना लगे और वो इजीली उसको कंपाइल कर सके, राइट? और प्री प्रोसेसर के ज्यादातर फंक्शंस एक स्पेशल सिंबल से डेजिग्नेटेड होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, कि अगर प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी लाइन से पहले या किसी भी वर्ड से पहले हैश का सिंबल या पाउंड का सिंबल लगा है, दैट मीन्स कि वो लाइन, वो पर्टिकुलर वर्ड, वो कमांड अब प्री प्रोसेसर के लिए है, कंपाइलर के लिए नहीं है, राइट? सो कंपाइलर और प्री प्रोसेसर में से आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन सी चीज कंपाइलर को एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी प्री प्रोसेसर से? तो जो लाइन आपके हैश से स्टार्ट होगी वो प्री प्रोसेसर के लिए बनी है, करेक्ट? वो कंपाइलर के लिए नहीं है, वो हैश से सी प्री प्रोसेसर होगा. तो प्री प्रोसेसर के मैं यहाँ पर एक बार फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर 3 टास्क हो रहे हैं: फाइल इंक्लूजन, मैक्रो डेफिनेशन, कंडीशनल कंपाइलेशन.
वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। सो फाइल इंक्लूजन क्या है? ये पहला काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इवन आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए भी इसको यूज किया। डेव सी कई बार क्या होता है, डेव सी के प्रोग्राम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इनबिल्ट इसको ले लेता है। बट कॉन्सेप्चुअली वी शुड नो दैट इफ यू आर यूजिंग printf फंक्शन एंड यू वांट कि इसकी printf की हमें फंक्शनिंग मिल जाए, वो फंक्शनिंग मिलेगी तो लिंकर से, लेकिन उसका डिक्लेरेशन जो आपने हैश इंक्लूड stdio.h किया है वो उसका डिक्लेरेशन है। In functions, we know that we have three operations are there: declaration, definition, and calling. Right? For system-defined functions, you have done calling. So, where is the definition? If definition is not present before the calling of a function, then declaration must be given. Right? We know all these things. So, वो declaration उसका वहां पर देना जरूरी है। और वो declaration क्या होता है, या declaration को हम prototyping भी बोलते हैं। So, prototyping is hash include stdio.h. For some special functions it is urgent, for few functions it is not urgent, because most of the time we are using printf scanner, so stdio.h automatically compiler attach कर देता है, so उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कई बार, but conceptually it is for that purpose। ठीक, अब यहाँ पर हैश इंक्लूड, ये तो हमारा है इंक्लूड डायरेक्टिव। सो हैश से शुरू हुआ है, इंक्लूड कमांड का नेम है। तो हैश इंक्लूड से हम दो तरह से हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एक एंगुलर ब्रैकेट लगाकर, देखिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स है लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में, और दूसरा डबल कोट्स में भी रख सकते हैं। जनरली जब हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं तो जो वो हेडर फाइल है, वो हेडर फाइल कहाँ पर सर्च करी जाएगी? लाइब्रेरी में। जो भी हमारी सिस्टम लाइब्रेरी है डायरेक्टली उसमें सर्च करी जाएगी, ग्लोबल एरिया में सर्च करी जाएगी। और अगर हमने डबल कोट्स में लगाया है तो पहले वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च की जाएगी। अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में वो नहीं मिलती है, देन इट विल बी सर्च इन ग्लोबल डायरेक्टरी। तो एक्चुअली में हेडर फाइल्स सिर्फ सिस्टम डिफाइंड नहीं होती हैं, ये यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं। तो जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं उनको जनरली हम डबल कोट से देते हैं, जिससे वो जल्दी सर्च कर लें, और यूजर ने जहां पर प्रोजेक्ट बनाया है वहीं पर अपनी हेडर फाइल भी रखी होगी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो वहीं से उसको वो ले आएगा। अदरवाइज फिर वो उसमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर नहीं मिलेगी हेडर फाइल, तो वो तो ग्लोबल एरिया में या सिस्टम के इंक्लूड पाथ में ढूंढने जाएगा ही जाएगा। तो देयर आर टू वेज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल, राइट? देयर आर वेरियस हेडर फाइल्स अवेलेबल: stdio.h, math.h, string.h, stdlib.h, conio.h, graphics.h, dos.h. Various others are also there. At least 800 or 700 header files are there. Then we have second task of preprocessor, that is macro definition. मैक्रो क्या होता है? व्हाट इज अ मैक्रो? मैक्रो इज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। सबसे पहले हम ये समझ लें कि मैक्रो है क्या। मैक्रो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। मैक्रो क्या है? एक नेम है, एक नाम है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो इज अ नेम, दैट्स ऑल। जैसे हम वेरिएबल रखते हैं ना, इंट आई इज इक्वल टू 10, सो आई क्या है? वेरिएबल का नाम है जिसमें 10 स्टोर्ड है। उसी तरह से सेम मैक्रो भी एक नाम है। आई हमने रखा इंट आई, वो इंटीजर डेटा टाइप का है और इंटीजर वैल्यू लेगा, ये कंपाइलर डिसाइड करेगा, और ये कंपाइलर से इवेल्युएट होता है वेरिएबल। लेकिन मैक्रो एक ऐसा नेम है जो प्रीप्रोसेसर से इवेल्युएट होता है, इसीलिए मैक्रो को देने का तरीका अलग है। तो मैक्रो को देते हैं हम, एक डायरेक्टिव होता है उसके लिए हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन मैक्रो, और फिर मैक्रो की वैल्यू या एक्सपेंशन। जैसे इंट आई इक्वल टू 10 लिखा आपने, तो आई किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, और इसमें क्या वैल्यू है? 10, तो वो इक्वल टू से आपने असाइन कर दी 10 वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर और ये आई की वैल्यू क्या, आई को क्या किया इसमें, इस लाइन में आई को डिफाइन किया ना, आई की डेफिनेशन है ये, इंट आई इज इक्वल टू 10। ये आई का इनिशियलाइजेशन भी है और डेफिनेशन भी है। इसी तरह से मैक्रो के केस में हैश डिफाइन करके आई 10 लिखेंगे, फिर वहां इक्वल टू नहीं लिखेगा, फिर वहां पर क्या नहीं होगा? इक्वल टू नहीं होगा। तो इसीलिए हम मैक्रो में, जैसे हम देखें यहाँ पर, तो हमने अगर लिखा यहाँ पर, सपोज ये है इंट, राइट, इंट आई इक्वल टू 10, ठीक, एंड फिर सेमीकोलन भी होगा। तो ये क्या है? ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन, राइट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ आई, डेफिनेशन ऑफ आई, ठीक। और ये किसके लिए है? कंपाइलर के लिए है, ये फॉर कंपाइलर। कंपाइलर विल इवेल्युएट दिस डेफिनेशन, और ये इसकी इस डेफिनेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा और उसको आगे के लिए इवेल्युएट करके रख लेगा। लेकिन अगर हमें कहीं पर मैक्रो से डेफिनेशन देनी हो तो क्या करते हैं? देन वी हैव टू राइट दिस हैश डिफाइन, हैश लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट दिस हैश सिंबल,
then we have to write this define, right, hash define, फिर लिखना पड़ेगा I और फिर 10. There is no semicolon required, there is no equal to required, and there is no data type also. So you can compare these two lines. This line is for compiler and this line is for preprocessor. ये किसके लिए है? ये preprocessor के लिए. Preprocessor. Preprocessor यानी कंपाइलर से पहले कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आई को 10 बता रहा है. अब पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी आई होगा वहां वहां पर प्रीप्रोसेसर 10 लिख देगा और वो कंपाइलर को आई नहीं दिखेगा, कंपाइलर को क्या दिखेगा? 10 दिखेगा. बस यही प्रीप्रोसेसर का मेन मैक्रो डेफिनेशन है. मैक्रो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, एक नेम है. तो यहाँ पर आई क्या है? आई है मैक्रो का नेम और 10 है उसकी डेफिनेशन. जैसे यहाँ पर आई क्या था? आई वेरिएबल है और 10 है उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू और इंटीजर डेटा टाइप से वो डिफाइन हुआ. तो इसीलिए मैक्रो हमारे दो तरह के होते हैं. सो मैक्रो नेम और मैक्रो एक्सपेंशन, ये दो पार्ट्स हैं मैक्रो के. मैक्रोज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एंड फंक्शन लाइक मैक्रो. किस कह रहे थे? दो तरह के मैक्रोज है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो. ठीक, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एंड फंक्शन लाइक मैक्रो. चलिए, तो पहला मैक्रो है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो. अब देखिए, जैसे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है जो सामने लिखा भी है, पाई, पी आई पाई. अब पाई नाम का सी लैंग्वेज में ऐसा कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट नहीं होता है. जबकि हम पूरे प्रोग्राम में, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया सर्कल का एरिया और सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए, तो हम वहां पर क्या लिखते हैं? 3.14 इंटू आर एरिया के लिए और 2 इंटू 3.14 इंटू आर पेरीमीटर के लिए सर्कल का, राइट? सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर. तो यहाँ पर जो 3.14 हम लिख रहे हैं, इस 3.14 को अगर हम किसी वेरिएबल के थ्रू बता दें, राइट, तो वो वेरिएबल, अगर हमने उस वेरिएबल का नाम वैसा रख दिया पाई, तो अब ये बहुत हमारा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा. एक रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमने एरिया का फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है और पेरीमीटर का फार्मूला है वो 2 पाई आर लिखा हुआ है. सो 2 इंटू पाई इंटू आर. तो अब ये जो पाई आपने डिफाइन किया, वो पाई क्या है? वो पाई मैक्रो. हैश डिफाइन पाई 3.1428, ये है मैक्रो. जैसे यहाँ लिखा ना, हैश डिफाइन अपर 25. सो अब ये अपर क्या है? मैक्रो का नेम है और 25 उसकी वैल्यू है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा ना, इंट आई इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन. देखिए यहाँ ना तो इक्वल टू है, ना डेटा टाइप है और ना ही सेमीकोलन है. फिर भी पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं भी अपर होगा वहां पर 25 आ जाएगा. बाकी फिर कंपाइलर के हिसाब से वो डेटा टाइप कन्वर्जन या डेटा टाइप एक्सप्लेनेशन कैसे करता है, मैचिंग कैसे करता है, वो कंपाइलर का है, इवेल्युएशन है. यहाँ पर अपर और पाई ये क्या है? मैक्रो नेम्स है. 25 एंड 3.1428 ये क्या है? मैक्रो के एक्सपेंशन है. अब अगर सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें अपर जो वेरिएबल है ये 10 जगह यूज कर रखा है, 10 टाइम्स, राइट? तो हमें अगर सब जगह उसकी वैल्यू बदलनी है तो ऊपर जाकर के हैश डिफाइन अपर 25 की जगह 35 कर दें. अगर हमें सपोज 35 करनी है तो बस एक जगह 35 करनी है, पूरे प्रोग्राम में अपने आप से 35 हो जाएगा, हमें हर जगह जाकर बदलना नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये एक मैक्रो का यूटिलाइजेशन है. तो मैक्रो डेफिनेशन इज नेवर टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन एंड इक्वल टू इज नॉट यूज, राइट? ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी. इसमें इक्वल टू नहीं यूज होता है और इसमें सेमीकोलन नहीं यूज होता है. और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लार्ज प्रोग्राम में. इसका एक सबसे पहला यूटिलाइजेशन आपने देखा होगा मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में, जहां पर मैट्रिक्स के साइज को हम एक जगह लिख देते हैं हैश डिफाइन मैक्स 100, और वह मैट्रिक्स जहां पर लिखा है वहां पर हम क्या लिखते हैं? वहां पर हम उसको हर जगह पर मैक्स लिखने लगते हैं फिर, राइट? तो वो हैश डिफाइन मैक्स 100 जो शुरुआत में लिखा है, वो पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी मैक्स होगा उस एरे के लिए, ठीक, उस एरे के लिए जहां जहां पर भी मैक्स होगा उसको वो 100 से रिप्लेस कर देगा. ठीक है ना? ऐसे कर देते हैं ना हम, हैश डिफाइन मैक्स 100, मैक्स स्पेस 100. तो ये स्पेस होगा नेम में और वैल्यू में. तो जहाँ पर यहाँ पर एक स्पेस होगा, यहाँ पर एक स्पेस होगा. अब पूरे, अब उसके बाद क्या करते हैं? सपोज हमने प्रोग्राम में गए, मेन में गए और वहां पर हमने एरे डिफाइन करा. एक यहाँ लिखा हमने इंट, सपोज इंट एक एरे है,
एरे ए और उसके अंदर लिख दिया यहाँ पर मैक्स। तो कंपाइलर को क्या दिखेगा? कंपाइलर को दिखेगा कि एक एरे है ए नाम का जो 100 इंटीजर्स स्टोर कर सकता है, क्योंकि कंपाइलर तक जब तक ये लाइन पहुंचेगी ये लाइन मॉडिफाई हो चुकी होगी और इस लाइन को प्री प्रोसेसर ने यहाँ मैक्स हटा करके इसकी जगह पर 100 डाल दिया होगा। ठीक, तो ये है प्री प्रोसेसर का टास्क। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हैश डिफाइन पाई 3.1415 इंट मेन इंट रेडियस फ्लोट एरिया फ्लो इंटर द रेडियस स्कैन परसेंट द रेडियस पाई रेडियस इनटू रेडियस। तो अब ये प्रोग्राम जब इवेलुएट होगा तो यहाँ पाई की जगह पर 3.1415 दिखेगा। करेक्ट। इसमें और बेटर वे में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख दें हैश डिफाइन पाई 22/7। यहाँ पर हम लिख दें हैश डिफाइन पाई, इसको और एक्यूरेसी देने के लिए, क्योंकि एरिया हमारा फ्लोट में है ना, तो इसको और एक्यूरेसी भी दे सकते हैं हम। कैसे? हैश डिफाइन 22/7। तो यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस आ जाएगा और रेडियस फ्लोट में है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बस 22/7.0 कर दीजिए तो ये एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और वो फ्लोट में आएगा रिजल्ट। अदरवाइज 22/7 रिजल्ट विल बी 3, है ना, that 3 will be evaluated with radius, तो एक्यूरेसी चली जाएगी। सो 22/7.0 करना बेटर है। किसी को कुछ भी डाउट हो बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7.0, so it will be more accurate. It will be more accurate. 22/7.0। सबको रीजन समझ रहा है ना? 22/7.0 क्यों किया मैंने? 7.0 इसलिए किया है जिससे कि इसका जो रिजल्ट है वो फ्लोट में रहेगा, 22 को 22.0 करके इवेलुएट कर देगा, फिर उसको रेडियस के साथ इवेलुएट करेगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेगा तो सबसे पहले वो 22/7 को सॉल्व कर लेगा। अब 22/7 का रिजल्ट कितना होगा? 3। तो 22/7.0 का रिजल्ट 3.1415 कुछ रहेगा। ठीक, फ्लोट में रहेगा। तो ये है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं इसका ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का। जैसे दूसरा एग्जांपल है, अभी और मैं आपको कोड स्निपेट्स भी कराऊंगा, उसमें और ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, दूसरा एग्जांपल है, इसमें हैश डिफाइन एंड लिखा हुआ है ना, 2 बार एंड ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर किसी भी चीज को, किसी भी सी प्रोग्रामिंग के किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए डबल एंड ऑपरेटर। डबल एंड ऑपरेटर आपको पता है ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। तो क्या है? ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, लेकिन प्री प्रोसेसर के लिए सिर्फ एक ये सिंबल है। तो हैश डिफाइन एंड, पूरे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी एंड आएगा उसकी जगह पर ये 2 बार एम्परसेंट लगा देगा। और दूसरा मैक्रो बनाया हैश डिफाइन अरेंज, और उसको एक ब्रैकेट में भी रखा है। तो जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ ब्रैकेट भी लगेगा, ये ब्रैकेट के साथ पूरा रिप्लेस होगा। तो यह जो भी डेफिनेशन होती है, जैसे ये पूरी डेफिनेशन है तो पूरी डेफिनेशन रिप्लेस होगी। तो जहाँ कहीं भी अरेंज दिखेगा ARANGE, वहाँ ये पूरी डेफिनेशन रिप्लेस होने वाली है। लेकिन प्री प्रोसेसर सबसे पहले उसको में हमने हैश डिफाइन एंड डबल एंड किया हुआ है, तो यहाँ पर वो इसकी डेफिनेशन को चेंज करेगा। पहले एंड की जगह क्या कर देगा? 2 बार एम्परसेंट, फिर ये अरेंज की डेफिनेशन बनी। ठीक, अब इस अरेंज की डेफिनेशन को आगे ले जाएगा और यहाँ पर इस जगह पर क्या लिख देगा? अरेंज की जगह पर a ग्रेटर देन 25 एंड a लेस देन 50। तो कंपाइलर को क्या दिखेगा? मेन चीज है ना कि कंपाइलर को क्या दिखेगा। तो कंपाइलर को इस अरेंज की जगह पर कंपाइलर विल सी दिस एज a greater than 25, राइट, एंड ये एंड कैसे आया है? ये एंड मैक्रो से आया है। ये जो एंड को डिफाइन किया 2 बार एम्परसेंट से, तो 2 बार एम्परसेंट आ गया है a लेस देन 50, राइट। ये अरेंज की जगह पर ये आ जाएगा। एक ब्रैकेट इफ का और दिया हुआ है तो वो ब्रैकेट भी लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कर सकते हैं। तो एक्चुअली में तो अंदर वाला ब्रैकेट इवेलुएट होगा, a की वैल्यू 30 है तो 30 ग्रेटर देन 25 करेक्ट है, एंड
30 लेस देन 50, ये भी करेक्ट है। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर अब कंपाइलर के पास है ना, तो कंपाइलर इज इवैल्यूएटिंग दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो विद इन रेंज प्रिंट हो जाएगा इसमें आउटपुट। ठीक। मैक्रो कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस अ सेंटेंस आल्सो, हैज डिफाइंड फाउंड प्रिंटफ। कई बार पूरे प्रोग्राम में आपके फाउंड होगा, तो वहां पर ये प्रिंटफ के अंदर जो लिखा है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होने का मतलब है कि वो उसकी वैल्यू को शो करेगा। राइट। अब ये देखिए प्रोग्राम है, this program is has defined found printf, hi it's me. So जहां कहीं प्रोग्राम में we will get this word found, the processor will replace this found by this sentence printf डबल कोट्स hi it's me, राइट। इससे उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें सेमीकोलन नहीं लगा है, इसलिए यहाँ फाउंड के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ सेमीकोलन लगा होता तो यहाँ नहीं लगाना पड़ता। करेक्ट। चलिए इसको मैं आपको कंपाइलर पर दिखाता हूँ, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू कि आप इसको एटलीस्ट कंपाइलर पर एक तो कम से कम देख लें। कंपाइलर पर लेके जाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा होगा, कंपाइलर स्क्रीन। सो हैश डिफाइन फाउंड, राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है फाउंड, और ये इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्कैनएफ, एक्चुअली स्कैनएफ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कुछ कैरेक्टर इनपुट करिए। तो पहले आप वो देखिए आउटपुट स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, आउटपुट स्क्रीन विजिबल कर दें। यस। नाउ इफ आई विल प्रेस हियर y, देन हाई इट्स मी विल बी प्रिंटेड, क्योंकि y इज इक्वल टू y मैच कर गया। फाउंड विल इवैल्यूएट, एंड फाउंड की जगह पर क्या है, ये प्रिंटफ, तो वही प्रिंटफ से आ गया। जब यहाँ तो फाउंड लिखा था, तो ये कैसे प्रिंट हो गया, हाई इट्स मी, क्योंकि वो प्रिंटफ से आया है। अब इसमें एक चेंज करते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन और यहाँ से हटा दिया सेमीकोलन। अब क्या होगा, अगेन आउटपुट स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड y एंड इट इज प्रिंटिंग, राइट। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो सेमीकोलन वहां पर लिखना इज नॉट एन एरर, बट सेमीकोलन विल आल्सो बी पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। सेमीकोलन विल आल्सो बी पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। यहाँ जो प्रिंटफ के अंदर पूरा लिखा हुआ है ना, दिस कंप्लीट सेंटेंस विल बी रिप्लेस्ड, विल रिप्लेस फाउंड। तो फाउंड जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। प्री प्रोसेसर जो है वो फाउंड की जगह पर ये पूरा सेंटेंस विद सेमीकोलन रख देगा। तो अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वहां लगाना पड़ेगा, और अगर वहां नहीं लगा होगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा। करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैक्रो इज फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो में ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में फंक्शन का नेम होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है, पैरामीटर्स पास होते हैं। अब यहाँ रिटर्न टाइप का तो कोई झंझट है नहीं मैक्रो से रिलेटेड, लेकिन हाँ पैरामीटर पास से रिलेटेड आपको टास्क करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन लाइक मैक्रो में क्या होता है, हैश डिफाइन मैक्रो का नेम, ठीक, देन पैरामीटर लिस्ट, कॉमा सेपरेटेड भी हो सकती है, एक से ज्यादा है तो कॉमा लगा करके करिए, अगर एक ही है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर रिप्लेसमेंट लिस्ट, रिप्लेसमेंट लिस्ट मीन्स बॉडी ऑफ फंक्शन, रिप्लेसमेंट लिस्ट मीन्स बॉडी ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन, राइट, एक्सपेंशन, जिसको यहाँ मैक्रो के केस में एक्सपेंशन बोल रहे हैं, फंक्शन के केस में वो उसकी बॉडी होती है, करेक्ट, जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। तो फंक्शन लाइक मैक्रो में देखिए SQR नाम का एक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन लाइक मैक्रो है, एक्चुअली में मैक्रो का नेम है। पैरामीटर लिस्ट में हमने x पास कर दिया, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, विद इन ब्रैकेट x इंटू एक्स। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। तो वो फंक्शन जिनकी बॉडी बहुत छोटी हो उसको हम मैक्रो से हैंडल करने में कंफर्टेबल होते हैं। अगर फंक्शन की बॉडी बहुत लंबी होगी तो मैक्रो के अंदर आपको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। So generally macros are useful when our functions having less body, right, and less number of times it has been called। क्योंकि आप देखिए मैक्रो क्या कर रहा है, कोर्स जो आपका सोर्स कोड है उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन आपका किसी मेन के अंदर में
सपोज 50 बार कॉल किया गया है या 15 बार कॉल किया गया है, तो उतनी जगह पर वो उसके एक्सपेंशन को रख देगा, ठीक है, और फिर इवेल्युएशन के लिए कंपाइलर को देगा। तो लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ गया ना। वहीं हमारा अगर नॉर्मल फंक्शन होता, मैक्रो नहीं रहता, तो क्या करता, जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उस समय वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाता है, और जब फंक्शन रिटर्न हो जाता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। तो आपका सोर्स कोड एक्सपैंड नहीं होता, उसको टाइम भी कम लगता। हाँ, लेकिन अगर 2-3 बार कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो आप उसको मैक्रो से इजीली बना सकते हैं। ये डिफरेंस है फंक्शन और फंक्शन लाइक मैक्रो के अंदर। जैसे यहाँ पर देखें एसक्यूआर एक्स है, एक्स इंटू एक्स, तो पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं भी एसक्यूआर एक्स होगा उसकी जगह पर एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के साथ आएगा। ठीक, तो देखिए मेन के अंदर इंट साइड 5 किया, एरिया स्क्वायर परसेंटेज एसक्यूआर साइड। अब ये एसक्यूआर साइड करने से क्या होगा, यहाँ पर साइड इंटू साइड आ जाएगा, साइड इंटू साइड आ जाएगा, और वो 25 प्रिंट हो जाएगा। तो ये है फंक्शन लाइक मैक्रो। चलिए इसको भी मैं कंपाइलर पे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा एक दो चेंजेस करके आपको जस्टिफाई करता हूँ। ये था ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, ठीक। अब बनाते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो। ये है फंक्शन लाइक मैक्रो, इसका थोड़ा सा ठीक करते हैं एडिटिंग, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख ले। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, ठीक। अब एक काम करते हैं बेटा, इसमें देखिए इसकी बॉडी के अंदर से ये x इंटू एक्स हटा देते हैं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट था, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इट इज करेक्ट। ठीक, सो दिस इज फंक्शन लाइक मैक्रो। अभी यहीं पर अगर फंक्शन लाइक मैक्रो में आपको सपोज ये जो है स्क्वायर एक्स को, मान लिया हम यहाँ पर अब इसकी बॉडी चेंज करना चाहते हैं। तो बॉडी चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम स्क्वायर एक्स में यहीं पर अगर हमने सपोज लिख दिया, एक दो काम करते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं हैश डिफाइन, सपोज लिख दिया पाई कितना है 22 डिवाइड बाई, मैंने लिखा था ना 7.0, ठीक। अब स्क्वायर एक्स की जगह पर यहाँ लिख देते हैं इसको एरिया, एरिया फाइंड कर रहा है एरिया एक्स। सो एरिया एक्स, अब इसकी बॉडी बना दे तो स्पेस दे रखना देना जरूरी है, स्पेस दे दिया। और ये क्या होता है, ये होता है पाई इंटू एक्स इंटू एक्स। सो एक्स एक पैरामीटर है और ये वाला एक्स इसमें कॉल हो रहा है, बॉडी है इसकी, पाई इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जहां कहीं भी एरिया एक्स आएगा वहां पर सपोज यहाँ पर लिख दिया एरिया, और ये साइड दे दिया इसके अंदर। सो साइड पाई इंटू पाई इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हम इसको अगर परसेंट एफ से प्रिंट कर दें तो और अच्छा होगा, नोट में रहेगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एरिया इसका कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक। अब ये करेक्ट है कि नहीं इसको देखने के लिए हम इसको 1 कर देते हैं एक बार, देखें क्या आंसर आता है। वही पाई की वैल्यू आंसर में आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन लाइक मैक्रो इज सक्सेसफुली वर्किंग। एरिया ऑफ सोर्स इज दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, is not area, area is only, this is not area of square, this is area of circle है ना एक्चुअली में। तो ये एरिया आ गया। अभी हमें अगर पैरामीटर बनाना हो तो हम एक और हैश डिफाइन लगा दें पैरामीटर के लिए, तो हमें वो फंक्शन की बॉडी यहीं पर दे देनी है, करेक्ट है। ये है हमारा फंक्शन लाइक मैक्रो, ठीक। दिस इज फंक्शन लाइक मैक्रो। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में भी किया हुआ है, एरिया R1 ए, एरिया R1 will be calculated and
stored in A will be printed. Area of radius R2 will be calculated accordingly, right? So circle ka area is calculated over here. Now we have various things to discuss, and I'll discuss it with along with all the values, right? Macros are pre-processed, functions are compiled, no type checking is required, functions में type checking is required. So macro and functions का यहाँ पर ये थोड़ा सा difference दिया हुआ है, right? Okay. So now we will go and see some code snippets by which you can understand this very well. First is this printf hello readers. Now there is one property of, now this is what? This is actually wrong, because hello then enter pressed then readers, right? So this is actually error. This cannot be done. But in this case this is correct, because this slash is actually deleting the effect of slash n. जो आपने एंटर की प्रेस किया है वो क्या है? स्लैश एन है, उसका इफेक्ट है न्यू लाइन कैरेक्टर में अगली लाइन को नई लाइन में ले आना. तो ये जो स्लैश है ये उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लाइन स्प्लाइसिंग. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लाइन स्प्लाइसिंग, जिसमें जो अगली लाइन नीचे पहुंच गई है इसको ये ऊपर ले आता है और हेलो रीडर्स एक साथ हो जाता है. जो आपने एंटर प्रेस किया है उस एंटर को के इफेक्ट को खत्म कर देता है और ये एरर हटा देता है. तो इसको बोलते हैं लाइन स्प्लाइसिंग, राइट? ये प्री प्रोसेसर का एक प्रॉपर्टी है लाइन स्प्लाइसिंग. देन ये यहाँ पर क्या किया है? कॉन्केटिनेशन है. तो ये भी प्री प्रोसेसर की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ कॉन्केटिनेट कर देता है, एडजेसेंट स्ट्रिंग्स को. अब यहाँ पर स्पेस दे दिया बीच में, सो बीच का जो स्पेस होगा वो भी हट जाएगा. वाइट स्पेस बीच से करेक्ट हटा दिया और वो भी वापस आ गया, ठीक. देन यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर str हेलो printf str रीडर्स. अब इसमें भी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगी, ये str हेलो हो जाएगा और ये रीडर्स हो जाएगा. फिर इसमें लेकिन एरर है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल्स कॉन्केटिनेट होते हैं. str स्ट्रिंग लिटरल नहीं है. str क्या है? str है कैरेक्टर पॉइंटर, इसलिए इसमें ये एरर आ जाएगी. तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे तरह से इसको ऐड करें और करेक्ट कर लें, strcat लगा दें या कुछ भी कर दें इस तरह से. बट प्रिंटफ में ये डायरेक्टली इस तरह से वैलिड नहीं है, ठीक. देन ये एग्जांपल तो हमने कर ही लिया है. पी की वैल्यू 3.14 है, तो 2 पाई आर इवेलुएट हो रहा है. यहाँ पर एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है. वाइट स्पेस कैरेक्टर कहाँ पर है? हैश डिफाइन. अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया. इक्वल टू इज रॉन्ग विद प्री प्रोसेसर, सो इक्वल टू नहीं अप्लाई हो सकता, यहाँ स्पेस होना चाहिए था. हैश डिफाइन पाई देन स्पेस 3.14. इसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह इंट आई, जैसे ये इंट रेड इज इक्वल टू 2 किया तो यहाँ पाई इज इक्वल टू 3.14 कर दिया. एक छोटे सी एरर की वजह से प्रोग्राम गलत हो गया. यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14 में, ठीक है. तो ये एरर है इसमें. देन यहाँ पर हैश डिफाइन पाई 3.14. अब ये तो करेक्टली लिखा हुआ है, राइट. तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, करेक्टली लिखा हुआ है. यहाँ पर सेमी कोलन लगा दिया. अब इस सेमी कोलन का मतलब क्या होगा बेटा? इस सेमी कोलन का मतलब होगा कि जहां कहीं भी पीआई लिखा है वहां 3.14 भी जाएगा और सेमी कोलन भी साथ में जाएगा. तो अब ये एरर हो जाएगी. यहाँ पर पीआई की वैल्यू 3.14 नहीं जाएगी सिर्फ, यहाँ क्या जाएगा? 3.14 एंड सेमी कोलन बोथ. तो ये एक्चुअली में 3.14 सेमी कोलन हो जाएगा, जो यहाँ वैलिड नहीं है, और इस तरह से ये एरर हो गई है, राइट. अब यहाँ पर देखिए हैश डिफाइन इंट कैर, ये भी कर सकते हैं हम. अब यहाँ पर कैर इसका एक्सपेंशन है इंट का. तो पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं भी इंट लिखेंगे प्री प्रोसेसर उसको कैर बना देगा और फिर कंपाइलर उसको कैर मान के इवेलुएट कर देगा. तो इसीलिए यहाँ पर ये इंट वैर लिखा है, एक्चुअली में ये कैर वैर हो जाएगा. कंपाइलर को दिखेगा यहाँ पर कैर है और कैरेक्टर का साइज प्रिंट कर देगा 1 बाइट, ठीक. ये स्क्वायर एक्स वाला तो कर ही दिया. स्क्वायर वैल्यू ऑफ 2 इज स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 2 4 आ गया, ठीक. दूसरे केस में देखिए एक्स इंटू, फिर से यहाँ पर x इंटू एक्स है, 2 इंटू 2 है. बट यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा. अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है? ये b इज इक्वल टू a डिवाइड बाई स्क्वायर 2 है. तो डिवाइड बाई स्क्वायर 2 में स्क्वायर 2 की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2. तो आपकी ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2. क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाई स्क्वायर 2, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2. तो 20, अब लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेगा कंपाइलर. 20 डिवाइड बाई 2 इवेलुएट होकर के 10 हो गया, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 20 हो गया. ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसा नहीं कि 2 इंटू 2 को आपने डिवाइड कर दिया आंसर 5 लिया है. 20 डिवाइड बाई 4, ये 20 डिवाइड बाई 4 नहीं है. लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है. सो एसोसिएटिविटी लगी हुई है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रहा है.
ठीक। तो स्क्वायर एक्स, इसी तरह से इसके केस में ब्रैकेट लगा दिया x इंटू एक्स। अब इसमें हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में 2 इंटू 2 रहेगा, स्क्वायर 2 की वैल्यू ब्रैकेट के साथ रिप्लेस हो जाएगी, अब 5 हो जाएगा। ठीक। अब ये लास्ट कर लेते हैं, खत्म करते हैं यहीं पर, x इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 5 है और स्क्वायर a प्लस 2 है। अब ये a प्लस 2 x की जगह पर क्या है, a प्लस 2, राइट। सो हियर b इक्वल टू x इंटू एक्स ब्रैकेट में है, सो a प्लस 2 इंटू a प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर a प्लस 2, तो स्क्वायर a प्लस 2 की जगह क्या हुआ, a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। अब a प्लस 2 इंटू a प्लस 2 में a की वैल्यू 5 रख के वी विल सॉल्व इट। सो 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2, so 5 plus 2 into 5 will be 10, so 5 plus 10 plus 2 17 इस तरह होगा, right। in next one, if you have written here brackets along with both x, so now explanation क्या हो गया, a plus 2 bracket में, right, then again bracket में, so bracket में it will become 7 into 7, it will be 49, right। So these were few snippets that I have discussed with you.